चलें जी स्टार्ट करते हैं टाइमलाइन के साथ। और द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर टाइमलाइन इज MBQ 1712. The next point was War of Plassey 1757. The third point was War of Independence 1857. Then we have Urdu Hindi controversy 1863 to 67. Then we have establishment of All India Congress 1885. Then we have partition of Bengal 1905. We have Simla Deputation 1906. Establishment of All India Muslim League 1906. Then we have Minto-Morley constitutional reforms of 1909. Then we have joining of Quaid-e-Azam in All India Muslim League 1913. Then we have World War I 1914. Then we have Lucknow Pact 1916. Then we have end of World War I 1918. Then we have Khilafat movement 1919. Khilafat movement 1919. Then we have non-cooperation movement 1920. Then we have end of Khilafat from Turkey 1924. End of Khilafat movement from subcontinent 1924. Then we have Simon Commission 1927, and we were started discussing Nehru report of 1928. अच्छा, इस टाइमलाइन के अंदर ना एक पॉइंट मैं भूल गया हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आप लोग लिख लीजिए। टाइमलाइन के अंदर वो आएगा जी, नाम है 1 नंबर के लिए पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल्ड। जी क्या मतलब है इसका? जी क्या मतलब है पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल्ड? अच्छा जी, पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल का मतलब ये है कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई 1905 के अंदर, जो हमारी टाइमलाइन के अंदर लिखी भी हुई है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद उसके खिलाफ हिंदुओं ने एजिटेशन स्टार्ट करनी शुरू कर दी, बिकॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल वन ऑफ द इंसिडेंट विच वाज इन द फेवर ऑफ मुस्लिम्स। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रही है 1905 के अंदर, इसको यहाँ पर। So that partition of Bengal was certainly in the favor of Muslims, because Muslims were inferior, Muslims were poor, and they were started thinking कि जब हिंदुओं की इजारादारी हम पर खत्म होगी तो Muslims will also flourish। तो इस partition के against हिंदुओं ने और स्पेशली कांग्रेस ने, they were so rigorous
and they were so agitated against the partition of Bengal कि 1911 के अंदर, इस 1911 के अंदर, after the 6 years, only 6 years after the partition of Bengal, the government of subcontinent, the British government had to cancel the partition of Bengal. Had to cancel the partition of Bengal. The cancellation of partition of Bengal means that a partition was revoked and the Bengal went on to the 1905's position. 1905 की पोजीशन पर चला गया. And that position was unpartitioned Bengal, unpartitioned, जिसके अंदर partition नहीं हुई थी. तो that points I missed it. अभी मुझे टाइमलाइन लिखते हुए मुझे याद आ गया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चीज मुसलमानों के फेवर में है वो हिंदू या कांग्रेस किसी सूरत भी उसको एक्सेप्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाते. And the act of the government also was so kiddish that they basically hijacked by the All India Congress and they had to revoke the partition. उनको partition revoke करनी पड़ी just because of the agitation of All India Congress. और All India Congress को खुश रखने के लिए, just to make them happy, All India Congress, they said okay, we will revoke the partition of Bengal. हम partition of Bengal को खत्म कर देंगे. और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट इसके साथ मौजूद है कि आपको पता है कि बर्तानिया के अंदर बादशाहत भी होती है. Although there is democracy now, but there is also a kingship and monarch. Monarchy is a symbol of their unity. Right now, Malka Elizabeth is the monarch of British rule. तो उस वक्त 1911 के अंदर for the first time in the history of British Empire की हिस्ट्री में पहली दफा the King George, who came to the subcontinent, वहां का जो बादशाह था, the king, he came to the subcontinent to visit their territory, अपने territory को देखने के लिए. पहली दफा जो subcontinent या इंडिया के अंदर British monarch आया, he was King George in 1911. तो 1911 में जब वो आया and he gave a gift, उसने गिफ्ट दिया ऑल इंडिया कांग्रेस को या हिंदुओं को अपने आने का. यानी वो गिफ्ट जो लेकर आया बर्तानिया से, वो ये लेके आया कि कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. एंड ही अनाउंस्ड इन बॉम्बे, दैट वाज इट वाज बॉम्बे. तो बॉम्बे के अंदर देयर वाज अ ह्यूज कार्निवल, एक बहुत बड़ा जलसा उसके एजाज के अंदर रखा गया, बहुत बड़ा जलसा रखा गया. एंड राइट नाउ देयर इज वेरी फेमस मॉन्यूमेंट was installed over there, constructed over there, and that monument is maybe the Bombay Azadi Gate, yeah, Gate of Bombay, I think. This is right in front of the Taj Mahal Hotel, the Hotel Taj Mahal, and it commemorates the arrival of British King in 1911. So when he came here in subcontinent, he gave the gift of cancellation of partition of Bengal. This was so ridiculous. This was so ridiculous for as far as the point of Muslims concerned. कि why they could say that कि हम आपको gift दे रहे हैं कि partition of Bengal cancel हो जाती है. It means that they are going to kill the 500 million people of partition of Bengal. So that was basically not in the favor of Muslims. So ये partition of Bengal was cancelled in 1911. ये भी आपने पॉइंट में एक नंबर के लिए लिखना है. मैंने आपको टाइमलाइन के अंदर ऐड कर दिया यहाँ पर कि the partition of Bengal was cancelled in 1911. And the reason behind that cancellation is simply the agitation against the government by the All India Congress. All India Congress was at forefront in cancellation of this partition of Bengal. Partition of Bengal को cancel करवाने में there was only one power behind that, and that power was All India Congress. Okay, so we were discussing the Nehru report, 1928. We were discussing the Nehru report. Okay, so what's the Nehru report is? The Nehru report we discussed के जब
थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आनी थी 1929 की। उस थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए एक कमीशन आया, दैट वाज कॉल्ड एज द साइमन कमीशन, and that Simon Commission was boycotted by the local political parties of subcontinent because there was no local representation in that commission. उस वफद के अंदर which was aimed to give a new constitution to the British to the subcontinent people, जिसका मकसद जिस कमीशन का ये था कि वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आने के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगा। लेकिन that commission was boycotted by the local political parties because there was no local representation was there. So that's why it was boycotted. And once it was boycotted, the British government gave a challenge. Basically, it was a challenge for the local political parties to draft their own constitution. तो ब्रिटिश एम्पायर ने, ब्रिटिश रूल ने ये लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को कहा कि इफ दे कुड ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स देन दे शुड मूव ऑन। तो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज में दो बड़ी पार्टीज यानी ऑल इंडिया कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एंड दे एस्टैब्लिश्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। They established 3 roundtable conferences to negotiate the major points of the constitution, but unfortunately, unluckily, no consensus could be done. कोई consensus नहीं हो सका कि what type of the constitution will be, उसमें कौन कौन सी कवानीन होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, कौन से laws होने चाहिए, and there was only one reason behind that, the fail of that 3 roundtable conference. And that point was basically that point was basically separate electorate, because Muslims were always in demand of the separate electorate. ये वही point है separate electorate का जो सिमला डेपुटेशन के अंदर आया था, और सिमला डेपुटेशन के बाद इसको मिंटो मॉर्ले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर एक्सेप्ट किया गया था कि ओके, whenever there will be elections in subcontinent, Muslims will be elected as a separate electorate rule. It means कि मुसलमानों की सीट्स अलग कर दी जाएंगी, मुसलमानों की सीट्स के ऊपर सिर्फ मुसलमान ही कॉन्टेस्ट कर सकेंगे, मुसलमान कैंडिडेट ही खड़े होंगे। There must not be any other participant or contestant on that Muslim reserve seats. इसकी सिंपल सी मिसाल मैं आपको अक्सर देता होता हूँ कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियंस आर इन माइनॉरिटी। अगर हम असेंबलीज के अंदर क्रिश्चियंस की सीट अलहदा ना करें, क्रिश्चियंस की सीट अलग ना करें, तो नो क्रिश्चियन कुड बी इलेक्टेड एंड विल एंटर इनटू द पार्लियामेंट टू रिप्रेजेंट देयर कम्युनिटी। तो हमने क्या किया हुआ है कि 15-20 सीटें, 8-10 सीटें हमने क्रिश्चियंस की अलग कर दी हुई हैं एज पर देयर पॉपुलेशन, कि उन क्रिश्चियन सीट्स के ऊपर क्रिश्चियन ही कैंडिडेट खड़े होंगे और वो क्रिश्चियन ही इलेक्ट होंगे। So that was basically the demand of the Muslims in of subcontinent कि Muslims should be elected as a separate electorate rule, and that rule was accepted, and that rule became the part of the constitution in 1909. But after 1909 constitution, every time the Congress started negating this separate electorate rule, कि there must not be the separate electorate rule. उनको पता था कि ये रूल लग गया है, इस रूल के तहत मुसलमान इलेक्ट होंगे और मुसलमान भी असेंबलीज के अंदर जाएंगे, प्रोविंशियल असेंबलीज में भी जाएंगे और सेंट्रल असेंबली में भी जाएंगे। और अगर मुसलमान प्रोविंशियल असेंबली और सेंट्रल असेंबली में चले गए, जस्ट लाइक एज मैं आपको मिसाल देता हूँ, कायदे आजम वाज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल असेंबली, कायदे आजम वाज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल, लेकिन उस वक्त इलेक्शन का प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था। इनफैक्ट दैट वाज नॉट द इलेक्शन, इट वाज सिलेक्शन बाय द ब्रिटिश मोनार्क। तो जो ब्रिटिश जिस बंदे को कह चाहते थे कि यार ये बहुत पढ़ा लिखा है और इसकी बड़ी सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट है, तो उसको वो अपनी असेंबली में ऐड कर लिया करते थे। तो दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन, नॉट द इलेक्शन। बट मुस्लिम्स वर ऑफ द व्यू कि व्हेनेवर देयर विल बी प्रॉपर इलेक्शंस, मुस्लिम्स शुड बी इलेक्टेड एज अ सेपरेट इलेक्टोरेट। सो दैट रूल बेसिकली, वो जो रूल है सेपरेट इलेक्टोरेट वाला रूल है, वो बोन ऑफ कंटेंशन बना, मसले की जड़ बना बिहाइंड द फेलिंग ऑफ ऑल दीज 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस which were established to draft the upcoming constitution of 1929. तो फिर नेहरू who was the president of all India Congress, कांग्रेस ने अपने पॉइंट खुद से दे दिए ब्रिटिश एम्पायर को कि देखें हमारी तरफ से ये पॉइंट है, आप इन पॉइंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल कर लें। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो पॉइंट्स हम लोग देख रहे थे नेहरू रिपोर्ट के। द फर्स्ट पॉइंट वाज द पॉलिटिकल सिस्टम
of subcontinent will be parliamentary with less या minimum powers to the provinces. अच्छा, लास्ट टाइम मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि डेमोक्रेसी के अंदर दो तरह के सिस्टम फॉलो किए जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर. इफ देयर इज अ डेमोक्रेसी देन देयर मस्ट बी द टू टाइप ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. द वन मस्ट बी द फेडरल सिस्टम एंड द सेकंड वन इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम. फेडरल सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर फेडरेशन होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और इसमें सूबों को ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तारी दी जाती है. सूबों को हमेशा से खुद मुख्तारी देना चाहिए. उसके रीजन क्या होती है कि एक सूबा दूसरे सूबे से हर लिहाज से डिफरेंट होता है. लैंग्वेज डिफरेंट, रहन सहन डिफरेंट, वहाँ का एग्रीकल्चर डिफरेंट, वहाँ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट, वहाँ का लिबास डिफरेंट, वहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट, वहाँ का बिजनेस डिफरेंट. तो जब इतनी चीजें डिफरेंट है तो नो सेंट्रल पावर कैन मैनेज ऑल प्रोविंस ऑफ एवरी कंट्री ऑन अ सेम पैटर्न. मैंने इसको लास्ट टाइम भी आपको मिसाल दी थी. पाकिस्तान के 4 सूबे, चारों सूबे एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर लिहाज से मुख्तलिफ है. आप क्लाइमेट देख लिए, आप वहाँ की पॉपुलेशन देख लिए, आप डेमोग्राफी देख लीजिए, आप वहाँ का कल्चर देख लीजिए, आप वहाँ की लैंग्वेज देख लीजिए, वहाँ का बिजनेस जो पैटर्न है वो देख लीजिए, एग्रीकल्चर देख लीजिए. तो ईच प्रोविंस कैन कैरी अ डिफरेंट सेट ऑफ लाइफ एज कंपेयर टू द अदर प्रोविंस. तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे सूबे के ऊपर एक तरह का निजाम चला रही है, हर सूबे के ऊपर? दिस इज हाईली अनलाइकली. सो दैट्स व्हाई दुनिया के अंदर सूबों को ज्यादा से ज्यादा सूबाई खुद मुख्तारी, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. इंग्लिश में हम इसको कहते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और उर्दू में हम कहते हैं सूबाई खुद मुख्तारी. जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं कि हर सूबे की अलहदा असेंबली, हर सूबे के अंदर अलग-अलग इलेक्शंस होते हैं और जो सूबे का विनर होता है वो सूबे को कंट्रोल करता है. मैं आपको मिसाल देता हूँ. सेंटर के अंदर तो इमरान खान की गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट है. लेकिन प्रोविंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं. केपीके में पीटीआई ही की है, पंजाब के अंदर पीटीआई और कुछ दूसरी जमातें मिलकर हुकूमत करती हैं, सिंध के अंदर टोटल पीपल्स पार्टी हुकूमत करती है, बलोचिस्तान में भी कोलिजन गवर्नमेंट्स है जिसमें डिफरेंट है. तो हर सूबा अपनी नई हुकूमत, अपनी हुकूमत बनाता है और अपने लॉज बनाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज द फेडरल सिस्टम. लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर देखा जाए, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो नेहरू फरमा रहे हैं कि द पॉलिटिकल सिस्टम सब कॉन्टिनेंट विल बी पार्लियामेंट विद लेस पावर, मिनिमम पावर्स टू द, के सूबों को कम से कम खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए. ये सूबों, तो इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम. व्हाई नेहरू वाज इन द फेवर ऑफ दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इफ आई ड्रा अ map to make this point clear, you will see why Nehru was in the favor of this parliamentary setup. Parliamentary setup के फेवर में क्यों था? Because if this is a subcontinent, इसके अंदर different मैं आपको provinces बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. If these are the provinces, हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर उस वक्त provinces हैं. अच्छा जी, मैंने ये जो थोड़े से सर्कल के अंदर बनाए हुए हैं, दीज आर द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस. मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस यानी ये वो सूबे हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है. जस्ट लाइक एज पंजाब में मिसाल दे देता हूँ, जस्ट लाइक एज मैं आपको उस वक्त का NWF दे देता हूँ, फिर मैं आपको मिसाल बंगाल की देता हूँ, फिर मैं आपको मिसाल उसकी उड़ीसा की देता हूँ, फिर मैं आपको मिसाल देता हूँ जी और भी इस तरह के 3-4 प्रोविंसेस थे जहां पर जो मुस्लिम मेजोरिटी थे, जहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी एज कम्पेयर टू हिंदूज. ये जो मैंने थोड़े से ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर बनाए हैं, ये है जी हिंदू मेजोरिटी. हिंदू मेजोरिटी यानी ज्यादा सूबे ऐसे थे जहां पर हिंदू मेजोरिटी में थे और कम सूबे ऐसे थे जहां पर मुसलमान मेजोरिटी में थे. लेकिन बहरहाल वो सूबे मौजूद थे. अब आप थोड़ा सा जरा कनेक्शन जोड़िए पीछे से जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में आपको बता रहा हूँ कि हुई थी फॉर टू ड्राफ्ट द अपकमिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1929. 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान. उन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का कोई नतीजा नहीं निकल सका जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट.
अब नेहरू ये कह रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का रूल ना दिया जाए, यानी मुसलमानों की सीटें अलहदा ना की जाए, जहां पर मुसलमान मेजोरिटी में है वहां पर भी हिंदू कैंडिडेट्स खड़े किए जाएं और हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें। अब नेहरू का या कांग्रेस का ये ज़हन अगर हम पढ़ लें और उनकी प्लानिंग हम समझ लें तो हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को सब कॉन्टिनेंट में दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रही थी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट रूल खत्म किया रहा है, रूल खत्म होगा तो जाहिर सी बात है मुसलमान इलेक्ट नहीं होंगे, मुसलमान इलेक्ट नहीं होंगे असेंबलियों में तो ज़ाहिर मुसलमानों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी असेंबलीज के अंदर। दूसरा, ऊपर से सिस्टम भी पार्लियामेंट्री लगा दो और क्योंकि सूबों को कम से कम खुद मुख्तारी दी जाए तो जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस हैं वो भी कंट्रोल किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मुसलमान तो है नहीं, तो जो कानून आप मुस्लिम मेजोरिटी पर लगाना चाहेंगे आप इजीली इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में बहुत ज्यादा इंटर रिलेट करते हैं। सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट का ना होना, जो हम अगला पॉइंट है इसका, तो ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। पहला है जी, नेहरू साहब ने पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, सूबों को कम से कम खुद मुख्तारी देनी। ऊपर से सेकंड अटैक करने जा रहे हैं वो अपने पॉइंट के अंदर कि देयर विल बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट रूल इन सब कॉन्टिनेंट। देयर विल बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट, ये दूसरा उन्होंने धमाका कर दिया जी कि सबसे पहले मिनिमम पावर्स रखें, पार्लियामेंट्री सेटअप होना चाहिए, मिनिमम पावर्स टू द प्रोविंसेस वाली पॉलिटिकल सेटअप लेके आए, ऊपर से सेपरेट इलेक्टोरेट रूल भी खत्म कर दें, यानी बस सूबों की हुकूमत में भी और सेंट्रल हुकूमत में भी ज्यादा से ज्यादा हिंदू चले जाएं और फिर जो हिंदू जो कवानीन बनवाएंगे मेजोरिटी के अंदर वही होने चाहिए। आगे से थर्ड पॉइंट, अच्छा जी, तीसरा जिससे वो उनको मुसलमानों का बोझ नजर आ रहा है इनके पॉइंट्स के अंदर कि मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेशन इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल असेंबली विल बी नॉट मोर देन 1/4, कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन टोटल साइज ऑफ द असेंबली का 25% से ज्यादा नहीं होगा, विद सब्जेक्ट टू द विनिंग सीट्स बाय द मुस्लिम्स। लेकिन इसको एसोसिएट कर दिया उन्होंने, मशरूत कर दिया कि जितनी सीटें मुसलमान विन कर रहे हैं, मुसलमान सबसे पहले तो भी सेपरेट इलेक्टोरेट रूल खत्म करवा रहे हैं, तो मुसलमान ने विन कहाँ करना है? ठीक है, मुसलमानों की तो सीटें ही आप अलहदा नहीं कर रहे हो, मुसलमानों को भी आप हिंदुओं के अंदर से चूज करवाने की कोशिश कर रहे हो, और अगर चूज हो भी जाते हैं तो जो असेंबली का साइज है उस साइज का 1/4 से ज्यादा मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। यानी फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 100 members in any assembly, total size of assembly is of 100 members, तो उसके अंदर जो मुसलमान मेंबर्स होंगे, मुस्लिम मेंबर्स, वो कितने होंगे जी? 25 और 75 will be they might be the Hindus or other people belong to the different regions। लेकिन जो मुसलमान होंगे वो with subject to the winning ratio जितनी वो जीतेंगे उसका 25% आप जो उनसे ना वो ले आए। तो ये तो अटैक पर अटैक मुसलमानों पर इनकी रिपोर्ट कर रही है। चौथा जी, नए प्रोविंसेस बनाने चाहिए, न्यू प्रोविंसेस शुड बी एस्टेब्लिश, क्योंकि और नेहरू वगैरह को और एक कांग्रेस को हमेशा से उम्मीद थी कि जितने नए सूबे बनेंगे उन सूबों के अंदर हिंदुओं की मेजोरिटी ज्यादा होगी, और वो जाहिर सी बात है कि जब हिंदुओं की मेजोरिटी ज्यादा होगी और कभी इलेक्शन होंगे तो वहां पर हिंदुओं की हुकूमत ही बनेगी।
तो न्यू प्रोविंसेस शुड बी एस्टैब्लिश, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, नए सूबे बनाए। अच्छा जी, द फिफ्थ पॉइंट वाज सिंध वाज द पार्ट ऑफ बॉम्बे जो इंडियन प्रोविंस है करंटली एट दैट टाइम, सिंध वाज द पार्ट ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे का हिस्सा था। लेकिन मसला क्या था कि बॉम्बे और सिंध के दरमियान, इन दोनों पार्ट्स के दरमियान एक बहुत बड़ा सहरा आता है, बहुत बड़ा तो नहीं, बहरहाल काफी बड़ा सहरा आता है। उस सहरा की वजह से जो जितनी भी डेवलपमेंट थी वो सारी की सारी बॉम्बे के अंदर हो गई, लेकिन डेवलपमेंट क्रॉस नहीं कर पाई उस सहरा को, और सिंध बिकेम द लेस प्रिविलेज्ड एंड लेस सिविलाइज्ड और पुअर पार्ट ऑफ दैट बॉम्बे। तो बॉम्बे, सिंध वाज द पार्ट ऑफ द बॉम्बे, लेकिन उस सहरा की वजह से बॉम्बे की सारी डेवलपमेंट सिंध के अंदर डेवलप नहीं हो सकी। तो ये डिमांड किया जाता था उस वक्त कि सिंध को बॉम्बे से अलहदा कर दें, उस सहरा को भी अलहदा कर दें, सिंध को बॉम्बे से अलहदा कर दें, ताकि सिंध भी खुद चला। अब सिंध को अगर बॉम्बे से अलहदा करते तो सिंध विल बिकम द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, ये एक अलहदा प्रोविंस बन जाएगा और ये होगा जी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। तो इसीलिए नेहरू साहब ने साथ एक कंडीशन लगा दी है कि इफ सिंध कैन मैनेज इट्स ओन एक्सपेंसेस, अगर सिंध अपने एक्सपेंसेस खुद से मैनेज कर सकता है तो सिंध को बॉम्बे से अलहदा करो, अगर सिंध खुद से एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर सकता तो अगर सिंध मैनेज नहीं कर सकता अपने एक्सपेंसेस तो सिंध को बॉम्बे से अलहदा ना किया जाए। यानी ये भी एक तरह से 50% मुसलमानों के फेवर में, और उसके बाद दोबारा से अटैक कर दिया गया मुसलमान इफ की कंडीशन लगा के कि इफ सिंध कैन मैनेज इट्स ऑन एक्सपेंसेस। तो ये 5 एक पॉइंट हैं नेहरू के, इन पॉइंट्स को क्रिटिकली अगर वैल्यूएट करें तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें कहीं ना कहीं एंटी मुस्लिम या मुस्लिम एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स या रिजर्वेशंस वाले ये लगते हैं, जिसके अंदर मुसलमानों को कम से कम फेवर देने की बात की गई है। सो दैट वाज द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928, ये दी गई है कांग्रेस की तरफ से, और दी क्यों जा रही है क्योंकि जो अगला कॉन्स्टिट्यूशन आना है 1929 का, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें शामिल कर लें कि पॉलिटिकल सेटअप कर दें, पार्लियामेंट्री सूबों को कम से कम खुद मुख्तारी दी जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट का रूल खत्म किया जाए, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन विद सब्जेक्ट टू द विनिंग रेशो या विनिंग सीट्स 1/4 कर दी जाए, नए प्रोविंस बना दिए जाए, और नए उसके बाद सिंध को बॉम्बे से अलहदा कर दिया जाए अगर वो सिंध अपने एक्सपेंसिव खुद से मैनेज कर सकता है। तो ये मैंने चंद एक पॉइंट्स आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नेहरू के रखे हैं, जो आप लोग इसको इस बारे से किसी की कोई क्वेश्चन हो तो, ये किसी का क्वेश्चन नेहरू रिपोर्ट के वाले से, किसी पॉइंट के वाले से कोई पॉइंट समझ ना आया हो उसे पूछ सकते हैं, आपको डिस्कस करना चाहें डिस्कस कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है सर। चलें जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। अब ये नेहरू रिपोर्ट तो दे दी कांग्रेस ने, तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है यहाँ पर कि अगर इस नेहरू की या कांग्रेस की रिपोर्ट को मान लिया जाए तो इट मींस कि दैट वाज द डिफीट ऑफ द मुस्लिम्स, पॉलिटिकल डिफीट, मुसलमानों की पॉलिटिकल डिफीट हो गई है ये, कि बातें कांग्रेस की मानी, हर वो बात कांग्रेस की मानी गई है जो एंटी मुस्लिम है। तो मुस्लिम लीग को क्या करना चाहिए अब? डेफिनेटली मुस्लिम लीग को भी अपने ड्राफ्ट्स देने चाहिए, अपने पॉइंट्स देने चाहिए, अपनी डिमांड्स देनी चाहिए, इससे पहले कि नेहरू की ये बातें ये पूरी हो जाएं। तो जो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है मुस्लिम लीग, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फौरन से वो नेहरू की इस रिपोर्ट को काउंटर करे और अपने पॉइंट्स दे। तो वही हुआ, मुस्लिम लीग की तरफ से कायद आजम ने अपने पॉइंट्स दिए, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, कायद आजम गेव इट्स फेमस पॉइंट्स, फेमस 14 पॉइंट्स, 14 निकात के नाम से जो हम लोग जानते हैं, famous 14 points. So those 14 points was basically a reply of Nehru, एक नेहरू का रिप्लाई, नेहरू रिपोर्ट का रिप्लाई था वो, that
14 points were basically the reply to the Nehru report of 1929. It means कि that was the reply to the Congress. Congress को reply था मुस्लिम लीग की तरफ से, official reply जो आया वो कहलाया जी 14 points of कायदे आज़म. तो हम लोग लिख लेते हैं. फोर्टीन पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म ऑफ 1929. कायदे आज़म ने कुछ अरसे के बाद ये पॉइंट्स दिए जो कि कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स या 14 निकात के नाम से मशहूर हैं, ज़माने में मशहूर है, ज़बान ज़द-ए-आम है. हम लोग 14 पॉइंट्स नहीं देखेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. हम लोग वो पॉइंट्स देखेंगे जो कि नेहरू को काउंटर कर सकते हैं, और कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सबसे पहले जी नेहरू फरमा रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम विल बी द पार्लियामेंट्री और विद मिनिमम पावर्स टू द प्रोविंसेस. अब जाहिर सी बात है कायदे-ए-आज़म इसका बिल्कुल उलट करेंगे, क्योंकि उनको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम लग गया और सूबों को कम से कम सूबाई खुद मुख्तारी मिली, कम से कम ऑटोनॉमी मिली, कम से कम उनको लिबर्टी मिली, तो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस तो रगड़े गए भाई. मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस में भी हिंदू लॉज लगेंगे, हिंदू रिलीजियस लॉज लगेंगे, गोरों के लॉज लगेंगे. मुसलमानों का कोई लॉ, मुसलमानों की कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकती मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस में भी. तो जाहिर सी बात है वो इसका टोटल उलट कहेंगे. तो कायदे-ए-आज़म विल कहेंगे, जो पहला पॉइंट है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ सबकॉन्टिनेंट विल बी फेडरल with maximum powers to the provinces. बड़ी सिंपल सी बात है. उलट कर दिया उन्होंने, पार्लियामेंट्री सेटअप को उलट कर दिया फेडरल सिस्टम के साथ, कि फेडरल सिस्टम लगाएं दी. फेडरल सिस्टम ही वो ऐसा सिस्टम है जिसमें सूबों को ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तारी मिलती है. तो कोई जरूरत नहीं है जी आपको पार्लियामेंट्री सेटअप करने की, क्योंकि पार्लियामेंट्री सेटअप के अंदर सूबों को खुद मुख्तारी कम से कम होती है. तो जो पहला पॉइंट आपके सामने आ गया कायदे-ए-आज़म का, और उन्होंने जो रिप्लाई किया है नेहरू को, तो वो किया है पार्लियामेंट्री को उन्होंने किया फेडरल के साथ, और लेस पावर को किया मैक्सिमम पावर्स के साथ. नंबर दूसरा, नेहरू ने कहा था जी कि देयर विल बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स. कायदे-ए-आज़म फरमा रहे हैं कि देयर मस्ट बी separate electorate for the, not only for the Muslims but also for those who are less in population. कि हर उस मजहब के लिए, हर उस फिरके के लिए होना चाहिए, हर उस मजहब के लिए, माइनॉरिटी के लिए होना चाहिए कि जो के तादाद में कम है. तो कायदे-ए-आज़म की पॉलिटिकल फार साइटेडनेस आप देखिए कि वो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन या मुसलमानों की तो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि वो लोग जो के तादाद में कम है उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट रूल के तहत आप क्या करें जी, रिप्रेजेंटेशन दे असेंबलीज के अंदर. चलें जी आगे चलते हैं. थर्ड पॉइंट, ओके जी. व्हाट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ नेहरू. नेहरू का तीसरा पॉइंट क्या था, हम उसको देखते हैं, उसको टैग करने की कोशिश करते हैं. जी बताइए, मुझे भी भूल गया मैंने सीक्वेंस में कौन सा रखा था. अच्छा, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा था शायद वो, कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन विद सब्जेक्ट टू द विनिंग सीट्स विल बी 1/4. तो कायदे-ए-आज़म कहेंगे कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन ऑल असेंबलीज will not be more than 1/3, 33%. 1/3 will not be more than 1/3
without relating this with the winning seats by Muslims। वो कह रहे हैं मुसलमानों की विनिंग सीट से इसका क्या ताल्लुक है। सिंपल सीटें रखें, मुसलमानों की 1/3 रखें। मुसलमान अपनी पॉपुलेशन का 1/3 है, सब कॉन्टिनेंट के अंदर 1/3 ही रिप्रेजेंटेशन असेंबलियों में होनी चाहिए। अगर 100 मेंबर हैं असेंबली के अंदर किसी भी, तो 33 मुसलमान होने चाहिए उसके अंदर, बाकी आप जो मर्जी रखें। तो इसके अंदर ये ना करें कि जितने मुसलमान विन करेंगे उसका 1/4, सीधा रखें। नहीं, मुसलमानों की सीटें अलग करें, सेपरेट इलेक्टोरेट का रूल लगाएं, और उस रूल के बाद मुसलमानों की सीटें रखें जी 33%। 33% से कम नहीं होनी चाहिए जी। ओके, चौथा जी क्या था जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बाद में मजीद डिस्कस करूंगा। जो चौथा पॉइंट था नेहरू का, और उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं जी कायदे आज़म साहब। नेहरू फरमा रहे हैं कि देयर मस्ट बी न्यू प्रोविंसेस, न्यू प्रोविंसेस शुड बी एस्टैब्लिश। अब कायदे आज़म क्या करेंगे कि न्यू प्रोविंसेस शुड मस्ट बी एस्टैब्लिश, बिल्कुल एस्टैब्लिश करें। कायदे आज़म भी इस हक में है कि नए सूबे बनाएं। शुड मस्ट बी एस्टैब्लिश wherever it is required, जहां कहीं रिक्वायर्ड। but while establishing the new provinces, the boundaries of Muslim majority province will not be disturbed। चलें अभी हम देखते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा पहले देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कायदे आज़म की पॉलिटिकल फार साइटेडनेस के कितने दूर अंदेश थे वो पॉलिटिकली। जी मैंने लिखा हुआ है न्यू प्रोविंसेस शुड बी एस्टैब्लिश, नए प्रोविंस बनाए, कोई मसला नहीं, किसी बंदे को कोई मसला नहीं, ना कांग्रेस को मसला, ना मुस्लिम लीग को मसला। मुस्लिम लीग को तो बिल्कुल ही कोई मसला नहीं है कि बनाई देंगे जितने मर्जी बनाने, वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड, जहां कहीं ये रिक्वायर है, वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। बट लेकिन एक चीज हमेशा ज़हन में रखें कि व्हेन यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द न्यू प्रोविंस, कि व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द न्यू प्रोविंस, जब भी आप नए सूबे प्रोविंस करें, द बाउंड्रीज ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस विल नॉट बी डिस्टर्ब। मुस्लिम प्रोविंस जो मेजोरिटी प्रोविंस है उनकी बाउंड्री डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, उनकी बाउंड्रीज, उनका ज्योग्राफिया वैसे ही रहना चाहिए। ऐसे ना हो कि आप नया सूबा बना रहे हैं तो आधा पंजाब जो मुस्लिम मेजोरिटी काट के उसके अंदर डाल दें, होगा क्या, मुस्लिम मेजोरिटी माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। मसलन फॉर एग्जांपल जी जी, सर। आपकी एक यूनिवर्सिटी है, ये इसकी एक कन्फाइंड बाउंड्री है, इसका प्रॉपर एक ज्योग्राफिया है, इसकी एक चार दीवारी हुई हुई है, हमें पता चलता है ये यूएमटी है, इसके बाहर यूएमटी नहीं है। एक और आपके हमसाए के अंदर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, कोई भी वट एवर XYZ वो है, तो ऐसा ना हो कि जब कोई नई यूनिवर्सिटी हुकूमत बना रही हो यूएमटी के साथ, तो यूएमटी को भी उसके अंदर शामिल कर दे। वो आदि यूएमटी की जो बाउंड्रीज हैं वो भी उस नई सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, तो यूएमटी क्या होगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यही था, मुसलमानों को हमेशा से अपने मेजोरिटी होने के तशख्खुस को बहाल रखना था। बंगाल के अंदर देख लें, जब भी पार्टीशन हुई कांग्रेस को तकलीफ हुई और कांग्रेस ने पार्टीशन को खत्म करवाया। मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्टोरेट, अपने अलहदा तशख्खुस को, एक सेपरेट आइडेंटिटी को जब भी कायम रखने की कोशिश की है, हिंदुओं ने उस पर अटैक किया। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की मुसलमानों ने, सेपरेट आइडेंटिटी ये थी कि सेपरेट सीटें होनी चाहिए मुसलमानों की। मुस्लिम कैन नेवर एवर बी चूजन फ्रॉम द हिंदूज, हिंदू में से ना चूजें। एक रूल ना लगाएं कि जी इलेक्शन आ गए जी जो मर्जी कैंडिडेट खड़ा हो जाए, मुसलमानों की सीटें अलहदा करें, मुसलमानों के रीजन अलहदा करें, मुसलमानों के प्रोविंसेस अलहदा करें, फिर इलेक्शन करवाएं, फिर मुसलमान भी असेंबलियों में जाएंगे, फिर मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, फिर मुस्लिम लॉज भी बनेंगे। ऐसा नहीं होगा। और ये हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट रूल के होने या ना होने से कितना बड़ा फर्क पड़ा। अच्छा जी, तो कायदे से हम कह रहे हैं जी, कहा जहां मर्जी सूबा बनाए नया, नेहरू के बाद ठीक है, कांग्रेस के बाद ठीक है, नया सूबा बना लें, नए सूबे बनाने में कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है। और हम तो पहले भी पार्टीशन ऑफ बंगाल के हक में थे, हम लोगों ने बंगाल को नया सूबा बनाने की बात की थी।
तो पार्टीशन नया सूबा बनाएं, लेकिन हमेशा से एक बात रखें याद कि नए सूबे बनाते हुए मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस की बाउंड्री को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर ये डिस्टर्ब हुई तो इट मींस दैट कि दिस इज नॉट गोइंग टू बिकम अ न्यू प्रोविंस, इनफैक्ट दे आर गोइंग टू कट द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। तो मुसलमानों के प्रोविंस पर अटैक होने की कोशिश करिए, जो कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, पांचवा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये जो कायद-ए-आज़म का फोर्थ पॉइंट है ना कि बाउंड्री मुसलमानों की डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये हम आगे जाके देखेंगे कि जब पार्टीशन हुई 1947 के अंदर, तो कई मुस्लिम मेजोरिटी इलाके पंजाब के अंदर आने थे जब बाउंड्री डिफाइन की गई, लेकिन उनको जबरदस्ती शामिल करवा दिया गया इंडिया के अंदर। तो फिर हुआ खून खराबा, फिर कत्लो गारत हुई और फिर हिजरत हुई। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट बहुत है जिसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन गोरों ने करके दिखा दी थी कि हमने जब बाउंड्रीज बनानी है तो हमने मुसलमानों के साथ चीट करना है, और उन्होंने चीट किया भी। आप पंजाब की बाउंड्री देख लें, 4 इलाके 1947 में जो पाकिस्तानी पंजाब में आने चाहिए थे, गलत बाउंड्री बनाई गई, गलत बाउंड्री डिफाइन की गई और उनको शामिल किया गया कहां पर, इंडियन पंजाब के अंदर। ये हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये जो चौथा पॉइंट है ये किस तरह से कायदे आजम का बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट था ये। ओके, द फिफ्थ वन क्या है जी? नेहरू का पॉइंट है जी सिंध का। हम कहेंगे जी कायदे कह रहे हैं भी एक दिन की भी ताखीर ना करें सिंध को बॉम्बे से अलहदा करने के लिए, लेकिन ये जो कंडीशनें कर रहे हैं ना आप लोग, ये ना लगाएं, क्योंकि सिंध सूबा बनाए, आप मुसलमानों का ख्याल रखें, मुसलमानों को मेजोरिटी में रखें, तो सिंध को बॉम्बे से अलहदा करें, सिंध अपना एक्सपेंस खुद से रन कर लेगा विदाउट कीपिंग इन माइंड द एक्सपेंसेस। वो आप अगर शर्त के ऊपर जाएंगे फिर तो आप ये सूबा नहीं बनाते, तो मुसलमान यहाँ पर भी फिर माइनॉरिटी में ही रह जाएंगे, बॉम्बे मेजोरिटी में चला जाएगा, मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर आ जाएंगे। जी आपने ये पॉइंट लिखनी है, मैं इसको ऊपर से इरेज कर दूं एक पॉइंट, मेरे पास जी जगह नहीं, सर। मेरे पास जगह नहीं बच रही। चले एक थोड़ी सी जगह मुझे नजर आई है। अच्छा, छठा पॉइंट है जी कायदे आजम का, मेरे में नेहरू के काउंटर खत्म हो गया, कायदे आजम के अटैक खत्म हो गए, लोग कायदे आजम उसको काउंट कर रहे हैं, अब आगे से मजीद कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं। बड़ा अहम पॉइंट है। जी ये मैंने छठा पॉइंट लिखा है। वो कह रहे हैं कि किसी भी असेंबली से, असेंबलियों से जरा कवानीन बनते हैं, जो असेंबलीज होती हैं वो कवानीन बनाती हैं, तो उसने कहा किसी भी असेंबली से कोई भी रिलीजियस लॉ उस वक्त तक पास नहीं हो जाता जब तक उस मजहब से ताल्लुक रखने वाले जो मेंबर्स हैं, स्पेसिफिकली उस मजहब से ताल्लुक रखने वाले जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स का 2/3% उस कानून के हक में वोट नहीं आ जाता। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब जी मुसलमानों कायदे आजम की अगर बात मानी जाए कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए 33% इन असेंबलीज, 33% मुसलमान असेंबलियों में चले गए। अब असेंबली से कानून पास होने लगा है जो स्पेसिफिकली एक रिलीजन के मुतालिक है, वो है जी कि बड़ी ईद के ऊपर गाय का जिबा करना मना हो गया है सब कॉन्टिनेंट में, ये एक रिलीजियस लॉ है।
ज़ाहिर है कि रिलीजियस रिचुअल है मुसलमानों का, तो दिस लॉ विल नॉट बी इम्पोज्ड, विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड अनलेस, उस वक्त तक जब तक 33% का यानी 33 मुसलमानों का 2/3% वोट उस कानून के हक में ना चला जाए। तो अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो आप यहाँ से फिर दोबारा से लाइन मिलाने की कोशिश करेंगी कि नेहरू मुसलमानों को निकालने लगे हैं असेंबलियों से, निकाल देंगे तो जो मर्जी रिलीजियस लॉ लगा दे मुसलमानों पर। काजिम कह रहे हैं कि नहीं, 33% मुसलमान जरूर रखें असेंबली के अंदर, और 33% का भी 2/3 चाहिए होगा अगर मुसलमानों का कोई भी मजहबी कानून आ रहा है। तो कायदे आजम चीजों को नैरो डाउन करके चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, छठा पॉइंट ये है। सातवां मैं इधर लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा जरा कॉम्प्लेक्स हो गया, जरा आप लोग खुद से इसको देख लीजिएगा। 7th पॉइंट, देयर विल बी religious freedom for all, for every citizen of subcontinent। रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए जी, बिल्कुल रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, कोई इसके ऊपर कदगन नहीं होना चाहिए कि देयर विल बी रिलीजियस फ्रीडम फॉर एवरी सिटीजन ऑफ सबकॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट के हर बंदे के लिए एक, तो ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं कायदे आजम के 14 निकात के अंदर से, जो बेसिकली नेहरू को अटैक कर रहे हैं और नेहरू को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन पॉइंट्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो, आप पूछ लें। अभी मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से पॉइंट आगे चल के सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट बने, मैं आपको बताता हूं। एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। ये जो 3 पॉइंट्स है ना भाइयों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमने प्रैक्टिकली देखा है आगे आने वाले दिनों में बिफोर 1947। जी सायरा असलम। सर ये एग्जाम में आएंगे पॉइंट्स? एग्जाम में ही आने, और कहाँ आने बच्चे, ओके एग्जाम की सर, तैयारी थैंक करवा रहा यू। हूँ आपको, ठीक है, ये एग्जाम में ही आएंगे, मस्ट आएंगे। और ये 4 नंबर के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने पास, आप इसको नोट कर लीजिए, ये ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का के लिए आएगा, 4 नंबर से ज्यादा के लिए नहीं आएगा। ओके सर। अच्छा जी, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? नो सर, और कोई क्वेश्चन नहीं। ये सबको समझ आ गई है 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम की, जिसमें से हमने इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट्स ही देखे हैं, आप 7 पॉइंट्स ही लिखेंगे, अब 14 पॉइंट्स से ज्यादा से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किस पॉलिटिकल पार्टी के ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करेगी, नेहरू के या कांग्रेस के ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लेगी और उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना देगी, आइन का हिस्सा बना लेगी, या मुस्लिम लीग यानी कायदे आजम के इन 14 पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर लेगी और उसको आइन का हिस्सा, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना देगी, क्या होगा? तो अब अगर तो ये चीज एक्सेप्ट कर ली जाए नेहरू की,
तो डेफिनेटली मुसलमान सड़कों पर आ जाएंगे। और अगर मुसलमानों की ये मुस्लिम लीग की का ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया जाए तो हिंदू तो ऑलरेडी मेजोरिटी में, उन्होंने तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद बड़ी अपनी बात मनवा ली थी, तो वो ये सब चीजें फिर सड़कों पर होंगे कि आइन के अंदर तब्दीली करें, आइन में ये ना करें, आइन में वो करें, सब कुछ ये करें वो करें। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है फिर वो ये है कि फिर किसकी बात मानेगी। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर एक बड़ी एक गेम चली उन्होंने वहां पर। उन्होंने ये किया कि इनिशियली द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश रूलर या ब्रिटिश गवर्नमेंट डिडंट एक्सेप्ट एनी ड्राफ्ट, किसी का ड्राफ्ट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट दे ऑर्गेनाइज्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस